أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی طہارت کے مسائل جو جنرل جس میں جو ڈسکشنز ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آج کریں گے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ جو خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی اس کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن آج کی سیٹنگ میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنرل ہیں لیکن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں طہارت کے مسائل، اور سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم طہارت کا علم کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی طہارت جو کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین کی خدمت میں استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے موت سے پہلے کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر ہمارے لیے طہارت کی اہمیت جو ہے وہ کیوں ہے، کیوں ہمیں طہارت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیوں ہمیں اس کو بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم یہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ طہارت کے بغیر ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ دوسری یا تیسری وحی میں نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی یہ حکم دیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو یہ شروع کے ہی احکامات جو ہیں اسی میں بتا دیا گیا تھا۔ پھر اگر ہم اہمیت دیکھیں طہارت کی حدیث سے، تو صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی پسند فرماتا ہے۔ پھر الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس حدیث کو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو طہارت جو ہے وہ اہم ہے، اور کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمیں جانتے ہیں کہ نماز وہ عبادت ہے جو کہ ہم نے دن میں 5 دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے، چاہے ہم بیماری کی حالت میں ہوں، جب تک ہوش میں ہے نماز ہم پر فرض ہے۔ اور اگر ہم طہارت نہیں ہوں گے، با طہارت نہیں ہوں گے، تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوگا۔ اچھا، اب طہارت جو ہے یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے؟ جنرلی ہم لوگوں کا جو دھیان ہوتا ہے وہ جاتا ہے جسمانی طور کے اوپر، جو چیزیں ظاہری طور کے اوپر ہیں، ہمارا لباس ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا گھر، ہمارے ارد گرد کی جگہ، ہماری زیادہ تر دھیان ان جگہوں پر جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ طہارت کن کن چیزوں میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ جسمانی طہارت یعنی بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کو ناپاکی سے پاک رکھنا، اور ویسے بھی اور بھی آپ کی کیونکہ نماز کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر جگہ کو، پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، سوائے باتھ روم اور قبرستان۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جگہ جہاں پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اس جگہ کو ہمیں پاک رکھنا ہے، اور خصوصی طور کے اوپر وہ جگہیں جو مسجد ہے، جہاں پر خصوصی طور کے اوپر عبادت کی جاتی ہے، ان کو ویسے بھی حکم دیا گیا کہ اس کو پاک رکھو، جیسا کہ ہم نے ابھی سورۃ المدثر میں بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یہ شروع میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ باطنی طہارت بھی آتی ہے۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ باطن کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ تو باطنی طہارت میں کیا آتا ہے؟ دل کو شرک، حسد، کینہ، ریاکاری اور گناہوں سے پاک رکھنا۔ سورہ شعراء میں 88 اور 89 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ تو اعمال کی طہارت یعنی اعمال کو خالص نیت اور سنت کے مطابق کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اعمال یعنی اعمال صالح، جس طرح کہ ہمیں جاتے ہیں کہ عمل صالح میں کون سی چیز آتی ہے، کہ وہ اعمال جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور ان کا طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، وہ عمل صالح ہوتے ہیں۔ پھر عقیدے کی طہارت یعنی توحید پر جم جانا اور ہر طرح کے شرک کا انکار کرنا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مسواک کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں کچھ اس کے پتہ چلتے ہیں مستحب اوقات، یعنی کہ مسواک جو ہے جب منہ کی بو تبدیل ہو، حدیث کی بنیاد پر مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کے ذریعے اپنا منہ صاف کرتے، کیونکہ عموماً ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے اسٹمک کے اندر سے جو اس کے ڈائجیشن ایک سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں اور ہمارے منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم ایک منہ کے اندر ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، تو مسواک کرنے سے وہ جو اس کی اسمیل ہوتی ہے اور جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وضو کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو وضو سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کرنا اور نماز سے پہلے مسواک کرنا جو نماز کی جو اجر ہے اس میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرنا نماز کے اجر میں بہت اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی اوقات میں ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلسل مسواک کرنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہیں یہ فرض ہی نہ قرار دے دی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نزع کے عالم میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت شدت جب آپ کی بیماری اختیار کر گئی، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی جو تھی وہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں مسواک کو نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ سنت فطرت یعنی فطرت کی سنتیں، تو اس کے بارے میں مختلف احادیث آتی ہیں اور ہر حدیث میں مختلف سنتوں کو بتایا گیا ہے۔ تو تقریباً اگر سب حدیثوں کا جائزہ لیے جائے تو کوئی تقریباً 30 کے قریب جو ہیں وہ سنت جو ہیں وہ فطرت کی سنتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان میں جو شامل ہیں جو اس میں مونچھوں کو تراشنا، جیسا کہ حکم دیا گیا ہے حدیث میں کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک ان سے فرق ہے۔ پھر یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھانا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ہی سورہ نساء میں بھی آتا ہے،
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان نے یہ اس کے الفاظ ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، جیسے داڑھی منڈوانا یا فطری علامات مٹانا، شیطانی عمل ہے۔ فطرتی سنتیں جو ہیں ان کو باقی رکھنا اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ ناخن تراشنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرت کی سنتیں سکھائیں اس میں درج ذیل امور شامل ہیں۔ ناخنوں کو وقت پر کاٹنا اور صفائی کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ ناخن نہ بڑھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ عموماً جو اس کا سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ 40 دن سے پہلے ہی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ناخنوں کو کاٹ لیا جائے۔ اگر ہفتے میں ایک دفعہ کاٹ لیا جائے تو ایک روٹین بن جاتی ہے، اور وہ زیادہ لمبے بھی نہیں ہوتے۔ ختنہ کروانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنتیں سکھائیں اس میں کیا ہے؟ ختنہ کروانا سنت ہے اور فطرت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے، اور یہ پاکیزگی اور صفائی کے مقاصد کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ختنہ کروانے کی جو سنت ہے وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر عورتوں کے میں بھی یہ رواج ہے، کچھ قبائلی علاقوں میں، اگر ہم افریقہ کے یا کسی سائٹ پر جائیں تو وہاں پر خواتین کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور ان کے آگے کی زندگی میں بھی بہت زیادہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ختنہ جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا، انڈر آرمز جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا سنت ہے، اور اسے مستقل طور پر صاف رکھنا طہارت کا حصہ ہے۔ اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ بھی ہمیں آگے ہم اس کو تھوڑا سا بات کریں گے اس کے اوپر بھی۔ زیر ناف بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا بھی سنت میں شامل ہے، اور یہ بھی 40 دن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور اس سے پہلے صفا صاف کر لینا افضل ہے۔ وہی ہے کہ اگر آپ ویکلی ان چیزوں کو اپنے اس طہارت کا خیال رکھیں تو یہ پھر اتنا زیادہ اس کی گروتھ بھی نہیں ہوتی کہ وہ تنگ بھی نہیں کرتے، اور وہ جگہ صاف رہتی ہیں۔ بالوں میں مانگ نکالنا، سر کے بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور درمیان سے مانگ نکالنا سنت فطرت میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مانگ نکالتے اور کبھی مکمل بال چھوڑ دیتے، اور درمیان سے مانگ نکالنا جو ہے یہ سنت ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ سائڈ سے مانگ نکالنا منع کیا گیا ہے۔ پھر مسواک کرنا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس حکم کو پڑھا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں نے ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آج کل ہم جب اس کو، آج تو سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے، اور بہت زیادہ ہمیں اس کے فائدے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو ایسے بھی برشز آ گئے ہیں جو مسواک کے انہوں نے تھوڑا سا اس کو نرم کر کے اس کا ایک برشز بنا کے، تو وہ ٹوتھ برش کی شیپ کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جن کو چبانے میں مشکل ہوتی ہیں، جن کے دانتوں کا تھوڑا ایشو ہو گیا ہوا ہے، اس کو چبا نہیں سکتے، تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلی کرنا، منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کرنا وضو اور طہارت کی سنت ہے، ہر وضو میں کلی کرنا مسنون ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا وضو اور پاکیزگی کی اہم سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے یہ بھی ہے، آج ہمیں سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ناک میں تھوڑا سا اوپر کر کے پانی چڑھائیں تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو اندر کی جو وہ پورا ایک راستہ ہوتا ہے، جو اندر سے جو پوری رگیں جو ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم دن میں 5 دفعہ ایسا کرتے ہیں تو ہمارا یہ پیسج جو ہوتا ہے، نیزل پیسج، یہ ویسے ہی صاف رہتا ہے، اور جو ہمیں فلو یا کہ اکثر لوگوں کو آئے دن یہ شکایت رہتی ہے، الرجیز کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ پانی سے استنجا کرنا، پیشاب یا پخانے کے بعد پانی سے صفائی کرنا سنت اور مکمل طہارت کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں طہارت پر زور بھی بہت دیا گیا ہے۔ ہم عمومی طور پر ہمارے ہاں پانی ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر مٹی بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ تو وضو کرتے وقت انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا اور ان کو صاف کرنا یہ خلال کہلاتا ہے، یعنی کہ دونوں انگلیوں کے، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں پانی کو پہنچانا، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی۔ طہارت کے اصول، بیت الخلاء میں بایاں پاؤں داخل کریں، اور
फिर दुआ ये पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं तुझसे नापाक जिन्नों और जिन्नियों से पनाह मांगता हूँ, क्योंकि बैतुल खला जो है वो एक नापाक जगह होती है। और आजकल तो अब हमारे, क्योंकि वॉशरूम जो है हमारे बेडरूम्स के साथ ही अटैच होते हैं, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि मुमकिन है वो तो आप अपने वॉशरूम की जूती अलग रखें। आपने आप खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जाते वक्त बायां पाँव अंदर लेकर जाएं और दुआ पढ़ें, और जब वहां से बैतुल खुला से वापस आए तो फिर उसके उस वक्त भी दुआ जो है वो हम अभी आगे देखते हैं वो पढ़ें। फिर इसके अलावा बैतुल खुला में गैर जरूरी कोई बात ना करें। बाज लोग अंदर बैठ के कुछ मोबाइल ले जाते हैं या कोई किताबें ले जाते हैं, तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस जगह से बाहर निकलें अपना काम करके। इसी तरह खाना पीना तो बिल्कुल भी जो है वो वहां पर ना करें। सलाम का जवाब देना ये भी नहीं है। बैतुल खुला में किबला की तरफ मुंह या पीठ ना करें। बैतुल खुला से निकलते वक्त दायां पांव बाहर रखें। राइट फुट जो है वो आपने पहले बाहर रखना है। और बाहर आते वक्त गुफराना का, मैं तेरी मगफरत चाहता हूँ, ये दुआ जरूर पढ़ें। और हमें ये बताया गया है कि बैतुल खला के अंदर वो जिन्नात और जिन्नियाँ होते हैं, शयातीन होते हैं, जो कि शर फैलाते हैं। और अगर हम ये इन दुआओं का सहारा नहीं लेते तो ये शयातीन जो होते हैं हमारे घरों में आते हैं, दाखिल हो जाते हैं और घरों में आके फसाद भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम जब बिस्मिल्लाही, सिर्फ ये दो वर्ड बिस्मिल्लाही हम जब पढ़ते हैं तो शयातीन की आंखों के आगे पर्दा आ जाता है और वो हमें देख नहीं पाते। कुरान की एक आयत से हमें ये पता चलता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो जिन और ये जो शयातीन है ये हमें उस जगह से देखते हैं जहां से हम इनको नहीं देख पाते। तो वो आज हम ये जानते हैं, और हमें साइंसिस के जरिए भी पता है कि डायमेंशंस डिफरेंट हैं। तो मे बी कि वो हैं तो जमीन पर ही मौजूद है, लेकिन उनकी डायमेंशन डिफरेंट है। वो हमें जहाँ से देखते हैं, हमें अल्लाह ताला ने उस जगह की एक्सेस नहीं दी हुई, हम उसको जगह उस जगह से नहीं देख सकते। तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना लिबास चेंज करना हो, आपने वॉशरूम जाना हो, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। उससे ये होता है कि इन के आगे, इनकी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है और ये हमें देख नहीं पाते। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि शैतान के सिर्फ इशारे से भी लग जाती हैं। तो इन चीजों में हमें एहतियात करनी चाहिए। फिर यह है कि तहारत के लिए पानी के इस्तेमाल का मुताला, इसमें 8 मुख्तलिफ उमूर को समझने का तकाजा हमें वो देखते हैं। क्योंकि हमने ये जाना कि पानी से तहारत जो है वो अफसल है, तो इस बारे में हम मजीद देख लेते हैं। पानी की एक तो पाकीज़गी के इसके दलाइल हम देखेंगे, पानी के अलावा दीगर पाकीज़गी के ज़राए कौन से हैं उसको हम देखेंगे। पानी की इकसाम, पानी की मिकदार से मुतल्लिक अहकाम, पानी के बारे में शक के अहकाम, फिर जिस्मानी नजासतों की इकसाम, नजासत को दूर करने के ज़राए और इनकी मालूमात, वो नजासतें जिन्हें शरीयत में नज़रअंदाज किया गया है यानी माफ शुदा नजासतें, और इनकी मिकदार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी की पाकीज़गी कुरान से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अनफाल में, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिह, और वो तुम पर आसमान से पानी नाजिल फरमाता है ताकि इसके जरिए तुम्हें पाक करे। इसी तरह सूरतुल फुरकान में भी आता है, वह अनजलना मिनस समाई माअन तहुरा, और हमने आसमान से पाकीज़ा पानी नाजिल किया। अल्लाह ताला फिर इस तरह हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक पानी पाक है, कोई चीज इसको नापाक नहीं करती। इसी तरह ही एक और भी हदीस में आता है कि समंदर का पानी पाक है और इसका मुर्दार हलाल है। पानी के अलावा पाकीज़गी के और जराए जो हैं उसमें मट्टी है। और सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, फिर अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। तो सही मुस्लिम में आता है कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम जमीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है। तो पानी के अलावा जो मिट्टी है वो पाकीज़गी का जरिया है। अगर कहीं ऐसी जगह पर जहां पर पानी ना मिले तो मट्टी, गीली मट्टी नहीं, सूखी मट्टी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है तहारत हासिल करने के लिए। इसको मजीद भी हम अभी आगे देखेंगे।
दीगर अशिया तहारत, इसके बारे में दो आरा है। तहारत सिर्फ पानी ही से हासिल होती है, यानी नजासत को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल जरूरी है। दूसरी राय यह है कि हर वो पाक चीज जो नजासत को दूर कर दे इस्तेमाल की जा सकती है। कोई भी पाक जरिया, चाहे वो माया हो या सूरज की रोशनी, हवा या जमीन, जो नजासत को जायल कर दे। तो पत्थरों से इस्तिंजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह को पत्थरों से इस्तिंजा करने की इजाजत दी थी, और हड्डी और गोबर के इस्तेमाल को मना किया था, क्योंकि ये जिन्नों की खुराक है। तो हड्डी और गोबर जो था उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। फिर जूते की गंदगी जो है, यानी कि अगर कोई इसमें इसलिए कहा गया कि नमाज जो है वो जूते में पढ़ी जा सकती है अगर जूता साफ हो तो जब तुम में से कोई अपने जूते के साथ गंदगी पर चले तो मट्टी इसके लिए तहारत का जरिया बन जाती है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह से होकर आए जहां पर आपको शक है कि कोई गंदगी लग गई, और उसके बाद अगर आप ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां पर मट्टी थी, तो आपका जूता जो है वो नीचे से साफ हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो गंदगी को साफ करने वाली, नजासत को दूर करने वाली है। फिर पानी की जो इकसाम है वो तीन किस्म की हैं। सबसे पहला क्या है? पाक करने वाला पानी, जिसको कहा गया तहूर, यानी ऐसा पानी जो खुद भी पाक हो और दूसरों को भी पाक करने की सलाहियत रखता हो। ये पानी अपनी असल तख्लीक पर बरकरार हो, उसके रंग, खुशबू या जायके में कोई तब्दीली ना आई हो। इसमें जेर जमीन पानी या कुएं वगैरह का पानी, बारिश का पानी, दरियाओं, चश्मों और समंदरों का पानी, जलता हुआ पानी जो होता है वो सारा इसमें शामिल है। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि वह अनजलना मिनस समाई माअन तहुरा, और हमने आसमान से पाकीज़ा पानी नाजिल फरमाया। दूसरा जो किस्म है पानी की वो है ताहिर, यानी ऐसा पानी जो खुद तो पाक हो लेकिन दूसरों को पाक करने की सलाहियत ना रखता हो। मसलन अगर किसी पाक चीज, मसलन गोश्त का शोरबा हो जाए, चाय या खुशबूदार चीज की मिलावट से पानी के रंग, जायके या खुशबू में तब्दीली आ जाए, पानी में कोई आपने शरबत डाल दिया, तो ऐसा पानी वुजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसको आप खा पी सकते हैं, वो पाक है, लेकिन वो सफाई उससे नहीं हो सकेगी। चाय का पानी हो गया, गोश्त या शोरबा हो गया, या फलों का जो उसका जूस निकाला हो, तो वो पानी जो है वो वुजू के लिए या तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। फिर तीसरी किस्म जो है वो नापाक पानी है। ऐसा पानी जिसमें कोई नापाक चीज मिल गई हो और उसकी वजह से अब पानी के रंग, खुशबू या जायके में तब्दीली आ गई हो। तीन मेन चीजें हैं: उसका रंग चेंज हो गया हो, उसके अंदर से उस चीज की खुशबू या उसकी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो गई हो, या उसका जायका जो है वो बदल गया हो। ऐसा पानी ना तो खुद पाक रहता है और ना किसी को पाक कर सकता है। जिसमें गंदे नालों और सीवरेज का पानी, वो पानी जिसमें खून, पेशाब या नजासत मिलकर उसके खवास, यानी उसके रंग, बू या जायके को बदल दे। फिर क्या है कि इसी तरह हदीस में हमारे पास आता है कि बेशक पानी पाक है, कोई चीज इसे नापाक नहीं करती, मगर जब नजासत पानी की बू, जायका या रंग पर गालिब आ जाए, यानी इन तीन चीजों में से किसी एक में भी अगर उसको गलबा हासिल होगा, तो फिर पानी की पाकीज़गी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। इसमें जो है ये टेबल है, उसमें हम इसी को आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है जो डिटेल थोड़ी बताई जा रही है उसको हम अभी आगे जब देख लेते हैं, इसी से हमें पता चल जाएगा। इसमें हमारे पास जो पहला कायदा आता है वो ये है कि अगर किसी पाक चीज के पानी से, चीज के मिलने से पानी का रंग, जायका या खुशबू में नुमाया तब्दीली आ जाए, तो अब वो पानी अपनी असली हैसियत, यानी पानी नहीं रहता बल्कि वो नई चीज कहलाएगा। मसलन चाय की पत्ती पानी में डालते हैं जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है, तो अब वो पानी नहीं होगा बल्कि वो चाय कहलाएगी। इसी तरह ही अगर पानी में कोई नापाक चीज मिल जाए और इसकी वजह से पानी के रंग, जायके या खुशबू में तब्दीली आ जाए, तो ऐसा पानी नजिस होगा। मतलब सीवरेज का पानी, गंदे नाले वगैरह का जिसमें बदबू हो या उसका रंग में भी तब्दीली आ जाए। इसके अलावा तीसरा कायदा यह है कि जब पानी दो कुल्ला, तकरीबन दो बड़े बर्तन की मिकदार, जिसमें हम 200 लीटर के करीब कह सकते हैं, उतने हिस्से को, उतनी मिकदार को पहुंच जाए, जो कि बड़ी एक मिकदार होती है पानी की, तो वो गंदगी नहीं उठाता, यानी फिर आसानी से नापाक नहीं होता। उसके अंदर अगर कोई एक थोड़ी सी अगर कोई चीज भी गिर गई अगर गंदगी की, तो उसको उस तरह नापाक नहीं करेगी,
کیونکہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو اور اس میں تھوڑی سی نجاست گرنے کے باوجود پانی کے رنگ، ذائقے یا خوشبو میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ایسا پانی اب بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا شمار ہوگا۔ بڑا دریا یا کنواں جس میں معمولی نجاست گر جائے لیکن پانی کے خواص میں فرق نہ آئے۔ پھر کیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ تبدیلی ہونے پر حکم ہوگا، تبدیلی اگر نہیں ہوئی تو زیادہ مقدار میں پانی جو ہوگا وہ پاک ہی رہے گا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اس معاملے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی یقینی چیز جو ہے جب تک نہ یقینی طور پر ناپاکی ثابت نہ ہو جائے، نظر نہ آ جائے کہ اس میں کوئی خوشبو میں اس کی کمی ہوئی کوئی فرق پڑا ہے، اس کے ذائقے میں کوئی فرق پڑا ہے یا اس کے رنگ میں کوئی فرق پڑا ہے، تو پھر وہ اصول لاگو ہوگا۔ محض شک کی بنیاد پر طہارت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس اصول کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ نماز کے دوران اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کی ہوا خارج ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے نہ ہٹے جب تک کوئی آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایسا فیل ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کا شیطان ہوتا ہے جو اسی جگہ کے اوپر بھی چوکے لگاتا ہے، تو بعض دفعہ وہ نماز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے دھیان ادھر کرنے کے لیے تو انسان ایک شک میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ یہاں آواز آئی ہو یا اسمیل آئی ہو۔ پھر کیا ہے کہ اگر کسی کو پانی یا اپنی حالت طہارت کے بارے میں شک ہو، مثلا پانی پاک ہے یا ناپاک، وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا، تو شک کی بنیاد پر طہارت کا حکم ختم نہیں ہوگا جب تک کہ یقینی علامت ظاہر نہ ہو جائے۔ نجاستوں کی اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجاست جو ہے وہ دو اس کی بڑی مین اقسام ہے، ایک ہے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر۔ یہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حدث اصغر یہ ہے کہ وہ حالت جس میں وضو یا تیمم فرض ہو جاتا ہے لیکن غسل نہیں، مثلا پیشاب کا خارج ہونا، پخانے کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، نیند کے دوران سو گیا ہم کو انسان تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور تھوڑا خون یا پیپ کا نکلنا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وضو کا طریقہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بتایا گیا، جس کی ڈیٹیل جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے۔ تو وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، جیسا نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے پہلے وضو ضروری ہے جو کہ نماز کی کنجی ہے۔ پھر آ جاتا ہے حدث اکبر، یعنی وہ حالت جس میں غسل فرض ہوتا ہے، بغیر غسل عبادت جائز نہیں ہوتی، جس میں جماع زوجین یعنی کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا، احتلام یعنی نیند میں منی کا خارج ہونا، حیض یعنی پیریڈز عورتوں کا جو خون آنا، اور اسی طرح ہی نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون کا جاری ہونا، تو اس کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ جو کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک غسل نہ کر لو سوائے مسافر کی حالت میں۔ تو جنابت کی حالت کیا؟ جنابت کی حالت وہ ہوتی ہے جب میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہو، تو وہ حالت جو ہوتی ہے حالت جنبی جو ہوتی ہے وہ اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب تک غسل نہ کر لو تو اس نماز کے قریب میں جانا۔ ہاں مسافر کو اس میں گنجائش ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر ہے، کیونکہ پرانے اس دور میں جب سفر جو ہوتا تھا وہ آسان نہیں تھا اور مشکل ہوتا تھا، پانی بعض دفعہ نہیں بھی ملتا تھا، تو اس حالت میں پھر تیمم جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ بعض لوگ بعض دفعہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کو پانی نہیں مل رہا ہوتا، بعض دفعہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی گھروں میں یا پانی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، پانی نہیں آ رہا، لائٹ نہیں آ رہی، کوئی ٹینکی خراب ہو گئی، بہت سارے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور پانی نہیں مل رہا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ پانی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پانی آئے گا
تو हम नमाज पढ़ेंगे। बाज दफा जुम्मा का जिस तरह टाइम है तो नमाज को छोड़ देते हैं और वो पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, नमाज को आपने पकड़ना है और आपने अव्वल वक्त में पढ़ना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें पानी नहीं मिल रहा तो और आपने गुस्ल करना फर्ज है, तो फिर आप तयम्मुम करके वो नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं, और जब पानी मुयस्सर आ जाए तो फिर गुस्ल कर लें। सही बुखारी में आता है कि जब मर्द औरत के साथ इख्तिलात करे और मुबाशरत हो तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। फिर निजास्तों की इकसाम, वो जिस्मानी निजास्तें जो इंसान की तहारत को मुतासिर करती हैं। इसमें कुत्ते का लुआब, जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुंह डाले या चाटे तो इसे 7 मरतबा धोना है, और पहली बार मिट्टी से, क्योंकि कुत्ता जो है वो नापाक है, और कुत्ते का लुआब जो है वो भी नापाक है। तो कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको सबसे पहले उसको मिट्टी से धोना। और आज हमें साइंस भी ये बताती है कि जितने मर्जी डिटर्जेंट्स इस्तेमाल कर लें, बड़े से बड़े केमिकल भी इस्तेमाल करके देख लें, जो कुत्ते की जुबान में जो जरासीम होते हैं वो किसी भी उस केमिकल से मरते नहीं, और वो डेंजरस होते हैं। तो जब उसको पहली दफा मिट्टी से साफ किया जाता है तो फिर वो जरासीम जो होते हैं वो मरते हैं, और उसके बाद फिर 6 दफा उसको पानी से या किसी भी डिटर्जेंट से धोना है तो फिर वो बर्तन जो है वो साफ होता है। इसके अलावा फिर आता है सुअर की नजासत। अबू सालबा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम अहले किताब की सरजमीन में हैं, वो खंजीर खाते हैं और शराब पीते हैं, तो क्या हम इनके बर्तनों में खा सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें दूसरे बर्तन मिल जाएं तो इनमें खाओ, और अगर ना मिले तो इन्हें पानी से धोकर इस्तेमाल करो। तो अफजल यही है कि दूसरे बर्तन मिल ले लिए जाएं। लेकिन अगर कोई बहुत मजबूर है और उसकी हालत ऐसी है कि वो नई चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ऐसी सूरत में उन बर्तनों को अच्छी तरह से धो के फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसानी फुजला, इंसान का पेशाब और पखाना, फुजलात जितने भी हैं ये इजमान नजस हैं, यानी सबका इजमा है कि ये नजस हैं। तमाम फुकहा का इजमा है कि इंसानी पेशाब और पखाना नापाक है और तहारत को बातिल कर देते हैं। तो खुलासा ये है कि हर चीज असल में पाक है जब तक नजासत साबित ना हो। नजासत के अहकाम कुरान और हदीस और इजमा से साबित हैं। कुत्ते का लुआब, सुअर की चीजें और इंसानी फुजलात, ये सब तहारत पर असरअंदाज होते हैं। जानवरों का फुजला, हराम जानवर जिनका खाना हराम है उनका पेशाब और लीद भी नापाक और नजस हैं। हलाल जानवर जिनका खाना जायज है उनका पेशाब और लीद पाक शुमार होते हैं एक लिमिट तक। फिर सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मैं इस वही में जो मेरी तरफ आई है किसी खाने वाले पर कोई चीज हराम नहीं पाता सिवाय मुर्दार के या बहते हुए खून के या खिंजीर के गोश्त के, क्योंकि यह सब नापाकी, रिज्स हैं या गुनाह है जो गैर अल्लाह के नाम पर जिबा किया गया हो। हाँ, जो मजबूरी में हो और नाफरमानी करने वाला हो, नाफरमानी करने वाला ना हो और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो बेशक आप स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रॉल मत करें, इसलिए कि ना ये स्क्रीन फिर हो जाएगी खराब। तो बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो जारी खून जो है, जो खून बहने वाला है, जो बहता खून है, वो नापाक है। बाज दफा आप लोगों ने ये नोट किया होगा, कभी आप जिस तरह चिकन पकाते हैं या गोश्त या पकाया, या जैसा चिकन का बाज दफा लेग पीस डालते हैं और वो धुला हुआ है, आपने धोकर हर चीज साफ करके उसको डाला, तो बाज दफा उसमें से थोड़ा सा खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वो वाला खून जो है वो नापाक नहीं है। जो खून बह रहा होता है जब हम जानवर को जिबा करते हैं और उसकी रगों में से जो खून बह रहा होता है वो नापाक है। और बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं, अ, ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें उस खून को जैसे ही वो जानवर को जिबा करते हैं, जानवर को वो कोई टक लगाते हैं, तो उसका जो खून जो बह के निकलता है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको वो कंज्यूम करते हैं, उसको पीते हैं या उसको किसी भी तरह से कंज्यूम करते हैं। तो वो खून जो है वो नापाक है। फिर इसमें आता है मजी। मजी जो है प्री सेमिनल फ्लूइड है।
اس میں کیا ہے کہ وضو کریں اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیں۔ مزی کا خارج ہونے کی صورت میں شرمگاہ دھونا اور نیا وضو کرنا واجب ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم کل کی کلاس میں ان چیزوں کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کو ایک سرسری ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ منی یعنی سیمن، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرائی ہو جاتی تھی، اور جب ڈرائی ہو جاتی تھی تو اس کو کھرچ کے صاف کر لیا جاتا تھا۔ پھر اگر منی اگر سوکھ جائے تو اسے کھرچ دینا کافی ہے، اور اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، مگر اکثر کے نزدیک منی کو پاک سمجھا جاتا ہے، اگرچہ دھونا افضل ہے۔ یعنی کہ اپنی اصل میں وہ پاک ہے، لیکن اس کا دھونا جو ہے وہ افضل ہے۔ ودی ودی جو ہے یہ پروسٹیٹک فلوئڈ ہے، جو کہ اس کو آپ کہیں کہ ایک سفید گاڑھا اور گاٹھ دار سا پانی نما مادہ ہوتا ہے، جو پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی کیا ہے کہ نہ تو یہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، نہ اس کے نکلنے سے کوئی لذت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً تھکن، بوجھ اٹھانے یا پیشاب کے اختتام پر آتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، لیکن یہ منی یا مزی سے مختلف ہوتا ہے۔ اکثر جو لوگ وہ وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں، یا جو ریسلرز ہوتے ہیں، جو پہلوان ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ شکایت ہو جاتی ہے، جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس حدیث آتی ہے علی رضی اللہ بن طالب سے کہ میں ایک ایسا شخص تھا جس سے مزید زیادہ نکلتا تھا، تو میں نے مقداد رضی اللہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر وضو واجب ہے۔ فقہاء کے نزدیک ودی ناپاک ہے، لیکن اس کے نکلنے پر غسل واجب نہیں۔ تو علی رضی اللہ نے کہا تھا، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی میرے نکاح میں تھی، تو مجھے یہ بات پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، تو انہوں نے پھر ایک دوسرے صحابی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو پوچھا۔ اور چونکہ علی رضی اللہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلوانی کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا تھا، اس میں مسئلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا کہ وہ اس کے نکلنے پر غسل واجب نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کر لیا کریں، یعنی وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہی وامٹ یعنی قے کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک قے ناپاک ہے، کچھ کے نزدیک قے پاک ہے، لیکن بدن یا کپڑوں پر ہونے کی صورت میں سے دھونا مستحب ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک اسمیل آتی ہے، اور ایک گند جو ہوتا ہے وہ کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے۔ تو وہ اس کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ناپاک نہیں جس طرح پیشاب یا پخانہ، اس طرح کی ناپاکی نہیں ہے، لیکن ایک گندگی ہے، ایک اسمیل ہے، تو اس وجہ سے اس کو دھونا جو ہے وہ مستحب ہے۔ شراب یعنی الکحل، اور اس کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، کتوں کے لیے نصب کی ہوئی چیزیں، فال نکالنے والے تیر، سب شیطانی کاموں میں سے ہیں، ناپاک ہیں، یہ چیزیں رجس ہیں۔ اور اس میں جو جوا کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی ماڈرن ویز میں سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی ہیں کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جوئے میں بھی آتی ہیں کہ نہیں۔ بعض دفعہ ہم شرط لگا لیتے ہیں کہ فلانی چیز، اگر فرینڈز آپس میں کھیل کے نام پر ہی شرط لگا لیتے ہیں، تو وہ بھی جوئے میں ہی آتا ہے۔ کوئی گیم کھیل رہے ہیں گھر میں، اس کے اوپر شرط لگا لی جائے گی کہ اگر یہ کوئی جیتا تو وہ یہ کرے گا یا وہ کرے گا، تو وہ بھی اسی چیز میں آ جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح یہ فال نکالنے والے تیر، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں اور اسی طرح ہی کمپیوٹر میں، موبائلز میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ فال کے نام سے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، ان کے نام ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹیرو کارڈ ہو جاتا ہے، کوئی ہاروسکوپ ہو جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس کو بڑے ماڈرن انداز سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ پھر آج کل جو ایک بچوں کے ہم جب جاتے ہیں کسی بھی قسم کے، آپ یہ دیکھیں جوائے لینڈ وغیرہ اس طرح کی جو بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر اکثر آپ دیکھیں تو ایک کچھ جو ہوتی ہیں وہاں پر گیمز ہوتی ہیں، وہاں پر ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی ایک ویل جو ہے وہ گھمانا ہوتا ہے، اور اس ویل کے اوپر نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور وہ نمبرز جتنے بھی اس میں سے آئیں گے تو اس حساب سے ٹکٹس ملیں گی، یا کچھ بھی انہوں نے وہاں پر رکھا ہوتا ہے، یا کوئی ایک وہاں پر ایک میکینیکل ہینڈ ہوتا ہے جس نے کوئی ٹوائے جو ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک
लिमिटेड टाइम होता है और उसने वो उठाना होता है। तो ये सारी चीजें भी जो ना ये मॉडर्न उसमें जुए में ही आती है, क्योंकि जुए का असूल क्या है कि इन्वेस्ट सारे एक जैसा कर रहे हैं लेकिन सबको इक्वली नहीं मिल रहा। ये जो फाल वाले तीर हैं, इसका क्या था कि ये लोग जो थे, इन्होंने काबे में जो बुत रखे होते थे उनके सामने इन्होंने एक समहाउ एक कोई बॉक्स सा कोई ऐसा बनाया हुआ था जिसमें हर बंदा अपने एक नाम का तीर डालता था, और उसको बड़ी तेजी के साथ घुमाया जाता था, और उसमें से जो तीर उछल उछल के बाहर गिर जाते थे और जो एक रह जाता था वही जो था वो विनर होता था, और उसका जो भी कोई इनाम होता था वो उसको मिलता था। तो इन्वेस्टमेंट सबने एक जैसी की होती थी, मगर एट द एंड जो लेने वाला इनाम लेने वाला होता था वो एक इंसान होता था। तो जुआ वही है कि आप चाहे उसको बच्चों के किसी खेल के नाम पर करें या आप वैसे कुछ भी करें, कि इन्वेस्टमेंट सबने सेम की है, एफर्ट सबने सेम की है, लेकिन उसका जो इनाम है वो एक शख्स ले गया। तो वो ऐसी सारी गेम्स जो हैं वो इसी उस जुमरे में आती हैं। तो जरूर अपने बच्चों को भी और अपने घर वालों को भी इस चीज की आगाही दूध जरूर दें, क्योंकि देखने में ऐसी चीजें बड़ी अट्रैक्टेड हमें महसूस होती है, इसमें बड़ी अट्रैक्शन लगती है, और हम कहते हैं कि क्या हो गया, ये तो बच्चों के खेल हैं, इसमें अब इतना भी ज्यादा हमें इन चीजों में जाने की क्या जरूरत है, हर चीज के ऊपर ही पाबंदी लग गई है। लेकिन अगर हम उसका एसेंस देखें तो वो हमें किस तरह से उन चीजों को, जो एक हराम चीज है, उसको एक बड़े खूबसूरत अंदाज में हलाल बना के पेश किया जा रहा है। तो हमें इन चीजों की जरूर इन चीजों को की आगाही होनी चाहिए और हमें इस चीज को देखना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं नजास्तों की जो इकसाम जो है उसका खुलासा जो हमने देख लिया कि जानवरों का फुजला हराम जानवरों का नापाक है, हलाल जानवरों का एक लिमिट तक पाक है, बहता हुआ खून नापाक है, मजी वुजू और शर्मगाह को धो लेना इस सूरत में लाजिम है, ये वुजू को तोड़ देता है। मनी जो है वो खुरच कर साफ कर लें तो वो काफी होती है, और क्या के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, और शराब जो है वो नापाक है। उसके बाद आ जाता है कि जमीन पर नजासत। अब जमीन पर अगर नजासत हो तो क्या करें, इसमें एक हदीस हमारे सामने आती है कि एक आराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया था, मस्जिद नबवी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक डोल मंगवा कर उस जगह पर बहाने का हुक्म दिया। और ये याद रखिए कि उस टाइम मस्जिद जो थी वो कच्ची जगह के ऊपर थी, मिट्टी पर थी। तो जमीन पर नजासत हो तो एक बार पानी डालकर बहा देना काफी है, क्योंकि वो मिट्टी पर थी तो उसमें अगर पानी डाल दें तो वो तो जमीन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जहां पर पक्के फर्श है तो वहां पर बहरहाल आपको पानी डाल के उसको फिर वहां से साफ करना होगा, उसको वाइपर से या किसी तरह भी वहां से निकालना होगा। फिर हम ये देखते हैं कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो अपना हाथ बर्तन में न डाले जब तक कि इसे 3 मरतबा धो न ले, क्योंकि वो नहीं जानता इसका हाथ रात को कहाँ रहा। यानी कि उस टाइम पे तो नलके नहीं होते थे, उस टाइम के ऊपर पानी जो था वो किसी बर्तन में रख दिया जाता था, और अगर कोई उठा है सोया सोया हुआ और उसने डायरेक्ट पानी के अंदर हाथ डाला है तो उस चीज से मना किया गया कि पहले अपने हाथ को धो लो, उसके बाद फिर पानी में हाथ डालो। अगर तुमने वुजू करना है या किसी तरह भी सफाई करनी है तो पहले अपने हाथ को साफ करो और फिर पानी में हाथ दो। तो इससे हमें ये भी है कि अगर जैसे हम सुबह उठते हैं और हम वॉशरूम जाते हैं इस्तिंजा करने के लिए, तो उससे पहले इस्तिंजा करने से पहले भी अपने हाथों को धो लें। चाहे आप सो के उठें, आपको नहीं पता कि आपका हाथ रात को कहाँ रहा, आप पहले अपना हाथ धोएं और उसके बाद फिर इस्तिंजा करें। इसी तरह ही बर्तन कपड़े उन पर नजासत, तो जमीन पर नजासत एक बार पानी बहा देना काफी है। किसी चीज पर नजासत 3 मरतबा धोना जो है वो उस पर उसमें सुन्नत आती है। बर्तन और दीगर अशिया जो है वो क्या है कि तहारत या किसी भी और मकसद के लिए सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जायज नहीं है, इस चीज से मना किया गया। सोने और चांदी के बर्तनों में ना खाओ पियो और ना ही इनकी प्लेटों में खाओ, क्योंकि ये दुनिया में इन कुफार के लिए और तुम्हारे लिए आखिरत में है। तो इससे सोने और चांदी के बर्तनों में खाने से मना किया गया है। और ये वही हदीस है जो अभी हमने पहले देखी थी कि एक सहाबी ने जब पूछा था कि वो अहले जमीन अहले किताब की सरजमीन में है तो क्या वो उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कहा था कि अगर और मिल जाए तो उनमें खाओ और अगर ना मिले तो फिर उनके बर्तन धोकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बर्तनों से नजासत धोना। कबिशा रिवायत करती है कि अबू कतादा इनके यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने इन्हें पानी पिलाया, एक बिल्ली आई और पानी पीने लगी, तो अबू कतादा ने इसके लिए बर्तन झुका दिया ताकि वो आसानी से पी ले। कबिशा कहती हैं मैं इनकी तरफ देखने लगी ताज्जुब से। उन्होंने कहा "है भतीजी, क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ?" मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नजिस यानी नापाक नहीं है, ये तुम्हारे घरों में आने जाने वालों में से है। तो बिल्ली के बारे में ये आता है कि ये नापाक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नजिस नहीं है।
پھر حلال جانوروں کی کھال. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی تو فرمایا کیوں نہ تم نے اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام صرف اس کا کھانا ہے، یعنی حلال جانور اگر مر بھی جائے تو اس کا چمڑا جو ہے وہ تیار کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر مردہ جانوروں کا حکم. زمین کے مردہ جانور ناپاک ہوتے ہیں سوائے انسان کے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے. اور سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. مردہ جانوروں کا حکم. انسان کا جسم مردہ ہونے کے بعد بھی پاک رہتا ہے. دیگر غیر سمندری مردار جانور نجس شمار ہوتے ہیں. غیر سمندری، ٹھیک ہے، جو سمندر کے نہیں ہیں. جبکہ سمندر کے مردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے. سمندری جانوروں کا جو مردار ہے، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اور اس سے مراد سمندر کا جو مردار جو حلال ہے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو کہ پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں ہی رہتے ہیں اور پانی میں ہی مرتے ہیں، وہ پانی سے باہر نہیں آتے. جو پانی سے باہر آتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح ہی کیڑے اور مکھیاں وغیرہ، وہ جاندار جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی، کیڑے، چونٹیاں وغیرہ، یہ مر کر بھی ناپاک نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے اندر ڈبو دو پھر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈبو کے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسے مشروب میں گر گئی جو کہ بہت گرم تھا اور اس میں جب ڈبویا گیا تو وہ مکھی جو ہے وہ بکھر گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر وہ کھانے کی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں تو وہ اس میں ایک طرح سے اس کا حصہ ہی بن کے نا اس میں زائل وہ ہوگی، تو اس وجہ سے پھر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا. قضائے حاجت کے عمومی کے احکام. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا اصلاً ممنوع یعنی حرام ہے. تاہم اگر کوئی اوٹ، پردہ، دیوار وغیرہ ہو تو رخصت دی گئی ہے، کیونکہ دیوار اگر ہو سامنے تو پھر یہ رخصت ہمیں دی گئی ہے. اگر ویسے اگر اوپن سپیس میں ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. قضائے حاجت کے احکام میں جو حدیث آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کے لیے جائے تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرے. یہ مدینہ والوں کے لیے کہا گیا کیونکہ ان کا وہ رخ نہیں بنتا تھا، لیکن ہمارے لیے مغرب جو ہے وہ قبلہ رخ ہوتا ہے. پھر قضائے حاجت کے احکام میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ابن عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کی جھونپڑی کے پیچھے قضائے حاجت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور قبلہ کی طرف پیٹ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کی نظر پڑی، حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑی کہ وہ اس رخ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ درمیان میں آگے جو تھی وہ دیوار حائل تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کو قبلہ کی طرف رخ کرتے دیکھا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور قبلہ کے درمیان کوئی پردہ رکھتے تھے اور پھر پیشاب کرتے تھے، یعنی کہ راستے میں کوئی چیز حائل کر دیتے تھے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر ہمارے واش روم جو ہیں اگر اس طرح سے ہم بنے اور اس میں ہم نے جو اپنا سیٹ لگوانی ہے یا انڈین ٹوائلٹ لگوانا ہے تو اس کا رخ جو ہے اگر نہ قبلہ رخ ہو اور نہ ہی اس پشت ہو تو افضل ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بعض دفعہ ہوتا ہے آرکیٹیکچر میں کہ اس طرف ہو نہیں سکتا تو درمیان میں بہرحال دیوار حائل ہے تو وہ پھر اس کی ہمیں ایک رخصت ملتی ہے. کھلی جگہ کے اوپر کھلے میدان میں اگر کسی کو ضرورت پڑے تو پھر اس کو اس چیز سے جو ہے وہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے کچھ علماء کی رائے آتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس- اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس قبلہ یا بیت المقدس یعنی یروشلم دونوں کی طرف رخ کرنا یا پش کرنا ہر حال میں حرام ہے. یہ ایک سخت موقف ہے جس کے بعض علماء جو ہیں وہ اس قائل ہیں اس میں سے، لیکن سب اس چیز کے قائل نہیں ہیں.
तो खुलासा जो है इसका वो ये बन जाता है कि खुले मैदान और इमारत में दोनों सूरतों में हराम है, ये कुछ उलमा का कहना है। लेकिन खुले मैदान और इमारत दोनों सूरतों में जो जायज है, ये भी बड़े उलमा जो हैं वो इसके भी कायल हैं। खुले मैदान में हराम है और इमारत में जायज है। इसके भी काफी बड़े उलमा जो हैं वो इस चीज के भी कायल हैं। मुंह करना हराम है, पुश करना जायज है। इमाम अबू हनीफा इसको कहते हैं, और दोनों सूरतों में मकरूह है, हराम नहीं है ये भी। आइमा कराम कहते हैं इस तरह इमारत में सिर्फ पुश करना जायज है। हर हाल में किबला या बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करना या पुश करना हराम है। इसमें बाज अहले इल्म जो हैं जो थोड़ी सख्त राय रखते हैं वो इसमें कहते हैं। तो बहरहाल ये है कि दरमियान में अगर कोई चीज हायल है तो रुख किया जा सकता है। फिर इस्तंजा के अहकाम। इस्तंजा के अहकाम यानी इसमें हम पहले देखते हैं ड्राई वाइपिंग यानी खुश्क सफाई। जैसा कि हमने भी पहले पीछे पढ़ा था कि हम पानी के अलावा कौन सी चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सफाई का जरिया बनती हैं। तो उसमें हम देखते हैं अब कि कज़ाए हाजित के बाद सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करना अफजल है। लेकिन सिर्फ खुश्क चीजें यानी पत्थर टिश्यू वगैरह से सफाई करना भी जायज है। अगर कोई शख्स सिर्फ खुश्क सफाई करे तो कम अज कम 3 मरतबा सफाई करना जरूरी है। इजाफी सफाइयां करनी हो तो इन्हें ताक अदद यानी 3, 5, 7 वगैरह पर मुकम्मल करना मुस्तहब है, यानी कि 3 से कम इस्तेमाल ना करे। 3 से ज्यादा अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उस चीज को ताक अदद पर रखे तो वो बेहतर है। फिर यह है कि जो शख्स खुश्क सफाई करे तो वो सफाई को ताकत पर मुकम्मल करे। ठीक है, ये हमने भी पहले भी पढ़ा है। पानी के साथ सफाई करना खुश्क सफाई से ज्यादा अफजल है क्योंकि पानी ज्यादा मुकम्मल और पाकीज़गी फराहम करता है। फिर सूरत तौबा में आता है कि इस मस्जिद में वो लोग हैं जो पाकीज़गी इख्तियार करना पसंद करते हैं और अल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को से मोहब्बत रखता है। यहाँ तहारत जो है वो पाकीज़गी से मुराद जिस्मानी तहारत है जिसमें इस्तिंजा के लिए पानी का इस्तेमाल शामिल है। और ये मस्जिद ये कुबा वालों की जो थी अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई थी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि क्या किस चीज के ऊपर तुम लोग क्या करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये तारीफ फरमाई थी। उन्होंने फिर बताया था कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। खड़े होकर पेशाब करना। खड़े होकर पेशाब करना मकरूह और नापसंदीदा है, मगर अगर जरूरत हो तो जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बवक्त जरूरत खड़े होकर पेशाब किया था। असली हुक्म तो यही है कि खड़े होकर पेशाब जो है वो ना किया जाए, नापसंदीदा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़े के ढेर पर आए और वहां खड़े होकर पेशाब फरमाया। इसमें यह है कि आम हालात में बैठकर पेशाब करना सुन्नत और अफजल है, लेकिन अगर जरूरत हो मसलन जगह की खराबी या बीमारी की हालत में तो खड़े होकर पेशाब करना जायज है। और इस बारे में यह आता है कि उस वक्त एक तो वो किसी कौम के कूड़े का ढेर था क्योंकि वो नीचे सारा गंद था, तो वहां पर बैठा नहीं जा सकता था। दूसरा ये है कि ये भी आता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कुछ जख्म था जिसकी वजह से आप बैठ नहीं सकते थे, इस वजह से खड़े होकर पेशाब किया। इस्तिंजा के आदाब। बायां हाथ इस्तेमाल करना, पानी, पत्थर या मिट्टी के ढेले और ताक नंबर। नजासत को दूर करने के तरीके क्या हैं? वुजू, तयम्मुम और गुसल। वुजू के आदाब। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे और फिर 2 रकत नमाज अदा करे इस हाल में कि इसके दिल में कोई दुनियावी ख्याल ना आए तो इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक फजीलत है। लेकिन ये कहने को तो 2 रकतें हैं, लेकिन ये पढ़ना इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल भी दिल में कोई ख्याल नहीं। और अगर कोई इसको कर सकता है तो बहुत बेहतर है, जरूर करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला से फजर की नमाज के वक्त फरमाया, मुझे वो अमल बताओ जो तुमने इस्लाम में किया हो और जिससे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम सुनी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज करके रात को जब गए थे, तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे बिलाल रज़ी तआला की आवाज सुनी थी। तो बिलाल रज़ी तआला ने जवाब दिया, ऐसा कोई अमल नहीं जिससे मुझे ज्यादा उम्मीद हो सिवाय इसके कि जब भी मैं दिन या रात में वुजू करता हूँ तो मैं इस वुजू के साथ जितनी नमाज मेरे लिए लिखी गई होती है पढ़ लेता हूँ। इस नमाज को जो हम वुजू के बाद कहते हैं तहियतुल वुजू कहते हैं। 2 नफल, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है।
नवाकिज वजू यानी कि वो अमल जिससे वजू टूट जाता है, अगले या पिछले रास्ते से किसी भी चीज का खारिज होना, टेक लगाकर गहरी नींद सो जाना यानी कि बिल्कुल होश ना रहना, बेहोश हो जाना, हथेली या उंगलियों से शर्मगाह को छूना, कुफर का कोई कौल कहना यानी इर्तदाद इख्तियार करना, ऊंट का गोश्त खाना, शहवत के साथ औरत को छूना। वजू को तोड़ने वाली चीजें जो हैं वो पेशाब या पखाने का खारिज हो जाना, हवा का खारिज होना या रियाह का खारिज होना, नींद का गालिब आ जाना, बेहोशी या गशी तारी हो जाना, खून या पीप का ज्यादा मिकदार में निकलना, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, कै का निकलना, इसमें भी इख्तलाफ है, मर्द और औरत का बिला हाइल लम्स, बाज मजहब में इसका इख्तलाफ है। ठीक है, बाज जगह पर अगर वैसे आदमी ने अगर अपनी बीवी को टच किया है तो नॉर्मल वैसे कि उसको किसी हाथ लगाया तो उस सूरत में नहीं टूटता। बाज जो हैं उसमें जो उलमा जिसकी जो करते हैं डिटेल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि इससे भी टूट जाता है, लेकिन सब की फिक के अंदर ये चीज ऐसी नहीं है। नवाकिज तयम्मुम वो तमाम चीजें जो वजू को तोड़ती हैं, यानी तयम्मुम जिन चीजों से टूटता है तो वो तमाम चीजें जो वजू को तोड़ती हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पानी अगर मुयसर आ जाए, पानी अगर नहीं था तो उस टाइम तयम्मुम था, लेकिन पानी आ गया मुयसर हो गया तो तयम्मुम टूट जाएगा। या वो उजर खत्म हो जाना जिसकी वजह से वजू नहीं किया जा सकता, यानी कोई इंसान किसी बीमारी की शिद्दत में है या किसी ऐसे किसी मसले में है कि वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका वो उज़र खत्म हो गया है, उसकी वो तकलीफ दूर हो गई, तो फिर उससे ये चीज रुखसत जो है ये भी खत्म हो जाएगी, फिर वो पानी को इस्तेमाल करेगा। नियत, वो दिल में नियत करना जरूरी है क्योंकि वुजू एक इबादत है और नियत जो है वो दिल में ही होती है, उसके कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह जो है वो कही जाएगी वुजू करने से पहले और नियत दिल में ही होगी। और फिर हमें कुरान से जो है सूरतुल माइदा में ये पता चलता है, जिसको हमने अभी पहले भी जाना है, कि ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लो और अपने सरों का मसा करो, टखनों तक अपने पाँव धो लो। तो वुजू के जो तरीका जो है सुन्नत हदीस से जो हमें पता चलता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है कि यहाँ पर आता है कि 3 दफा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धोए। यहाँ पर और उस्मान रज़ी तआला से ये हदीस आती है और उन्होंने 3 दफा अपने हाथ धोए, फिर कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया और निकाला, यानी नाक को साफ किया, फिर चेहरा 3 मरतबा धोया, फिर दाएं हाथ को कोहनियों तक 3 मरतबा धोया, फिर बाएं हाथ को भी इसी तरह धोया, फिर सर का मसा किया, दाएं पांव को टखनों तक 3 मरतबा धोया, फिर बाएं पांव को भी इस तरह धोया। फिर फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वजू करते हुए देखा था। और इसमें जो गर्दन का मसा है वो शामिल नहीं है, बाज जो लोग कहते हैं कि गर्दन का मसा, तो जो मसनून तरीका जो है उसमें गर्दन का मसा शामिल नहीं है। इसको हम दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं, तरतीब क्या है कि हाथों को 3 बार धोना, फिर कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और निकालना, चेहरा 3 बार धोना, दाएं हाथ को कोहने तक 3 बार धोना, बाएं हाथ को कोहने तक 3 बार धोना, सर का मसा करना, दाएं पांव को टखने तक 3 बार धोना और बाएं पांव को टखनों तक 3 बार धोना। और इसमें बाज लोग जो वजू करने के बाद जो वो शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ करके कलमा पढ़ते हैं, वो इसमें कोई शामिल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, वजू के बाद की कुछ दुआएं हैं जो मसनून है, जो पढ़ी जाती हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी दुआएं हैं। ठीक है, वजू की शरायत में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज पढ़ते देखा जिसके पाँव के तलवे यानी पाँव के जो नीचे वाली जगह थी उस पर 1 दिरहम के बराबर जगह खुश्क थी जहां पानी न पहुंचा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हुक्म दिया कि वो अपना वुजू और नमाज दोबारा करे, यानी वुजू भी दोबारा करे और फिर नमाज भी दोबारा पढ़े। फिर क्या आता है कि वुजू की जो सुन्नतें हैं उसमें भी बिस्मिल्लाह कहना, दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी में उंगलियां चलाना, उंगलियों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, दाएं जानिब से आगाज करना, 3 3 मरतबा धोना, सर का मसा करना, वुजू के बाद दुआ पढ़ना। वजू की जो सुन्नतें हैं, वजू के बाद जो दुआएं हैं उसमें आती है दुआ, तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस दुआ के बारे में कहा जाता है कि
اس के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जिस दरवाजे से वो चाहे दाखिल होगा। ये तिरमिजी की रिवायत में ये इजाफा है। फिर अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीना, ये दुआ पढ़ी जाती है। वजू के मकरूहात में ये है कि सबीलैन से कुछ खारिज हो जाए। सबीलैन यानी कि जो अम, जो दो रास्ते हैं वहां से कुछ भी निकल जाए तो वो वजू को मकरू कर देता है। या जब तुम में से कोई कज़ाए हाजित करे तो वजू करे, सूरतुल माइदा में भी ये चीज आती है। वजू के मकरूहात में एक और चीज आती है कि औरत के इंदामे नहाने से हवा का निकलना, यानी कि वो जो पीरियड्स की जो जगह होती है उसमें से अगर हवा का खारिज होना, क्या वो इसमें आता है? ये एक इख्तलाफी मसला है। और ज्यादा जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके नजदीक तो ये कि वजू नहीं टूटता, लेकिन शाफी मजहब जो है उसके अकॉर्डिंगली वजू टूट जाता है। दूसरी राय जो है वो ज्यादा मुस्तनद है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिसमें बताया गया कि तुम में से कोई वजू ना तोड़े जब तक आवाज और बू ना सुने, तो उसको महसूस ना करे। तो इसका रास्ता सबको पता है कि वो किस रास्ते से निकलती है, तो औरत की जो ये जगह है वो उसमें शामिल नहीं है। हवास का जायल होना, इस्लामी उलमा का इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि अगर किसी का होश जाता रहे, यानी बेहोश हो जाए, नशे की हालत में है, या पागलपन के उसको जो है वो उस पे इंटरवल्स आते हैं, तो किसी भी वजह से तो वो वजू जो होगा उसका टूट जाएगा। गहरी नींद का फिर चले सो जाना, तो इसमें सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफर के दौरान हुक्म देते कि 3 दिन और 3 रातों तक मोजे ना उतारें सिवाय जनाबत की हालत के, जबकि कज़ाए हाजित पेशाब में पखाना नींद के बावजूद हम मोजों पर मसा जारी रखते। तो ये जो है मोजों पर मसा जो है ये क़याम जो है यानी मुकीम जो है उसके लिए 1 दिन रात है, और अगर मुसाफिर है उसके लिए ये 3 दिन रात है। शर्मगाह को छूना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए इसे वुजू करना चाहिए। और एक और हदीस में आता है कि शर्मगाह को छूना क्या ये तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा नहीं है? बाज उलमा के नजदीक ये वजू को तोड़ देता है जब बराह रास्त इसको छुआ जाए, यानी अगर किसी कपड़े की ओट से होता है बाज़ दफा किसी को खारिश हो रही है तो उस वक्त अगर किसी कपड़े के साथ छुआ जाए तो फिर वजू नहीं टूटता, लेकिन अगर डायरेक्ट छुआ जाए तो वजू टूट जाता है। ऊंट का गोश्त खाना, इसमें हमारे पास हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऊंट के गोश्त के खाने के बाद वुजू करना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ करना चाहिए। तो ऊंट का गोश्त खाने के बाद ऊंट यानी कि ऊंट का जो गोश्त है वो वुजू तोड़ देता है, तो उसके बाद वुजू करना चाहिए। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने पेशाब किया फिर वुजू फरमाया और अपने मौजों पर मसा किया। शर्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें मौजों को छोड़ दो, क्योंकि मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना था और फिर इन पर मसा किया था। यानी कि आपने एक दफा अगर वुजू करके जुराबे पहन ली हैं तो अब आपने जुराबे जो हैं वो तहारत की हालत में पहने। अब आप नेक्स्ट टाइम अगर वुजू करते हैं तो आप सिर्फ जुराबों पर मसा कर लेंगे, और ये आप 1 दिन रात यानी 24 आवर्स का टाइम होता है जिसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मसा की मुद्दत, अली रज़ियल्लाहु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातों की, और मुकीम यानी मुकामी रहने वाले के लिए 1 दिन और 1 रात की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। अमर बिन उमैया फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने अमामे और मौजों पर मसा किया। अमामा यानी जो दस्तार जो के पगड़ी जो पहनी होती थी उसके ऊपर, और मौजों पर मसा किया। इसमें से बाज खवातीन भी पूछती हैं कि क्या हम स्कार्फ के ऊपर वजू कर सकते हैं, तो उसमें भी उलमा की दो राय हैं। बाज उलमा जो कुछ हैं, ज्यादा नहीं, वो इसको कहते हैं, लेकिन ज्यादातर उलमा जो हैं वो इसको इजाजत नहीं देते, और वो कहते हैं कि ये अमामे के ऊपर किया गया था, लिहाजा स्कार्फ जो है वो इसमें शामिल नहीं है। फिर अक्सर उलमा जो हैं
जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम मालिक शामिल हैं, इनके नज़दीक आम जुराबों पर मसा जायज़ नहीं। जबकि दूसरी जो राय है इसमें इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक आम जुराबों पर भी मसा करना जायज़ है। और इसमें हर वो जुराब जो कि बिल्कुल सी थ्रू ना हो, कि उसमें से पाँव जो है वो पूरा नजर आ रहा हो, जो बिल्कुल बारीक सी स्टॉकिंग्स होती हैं वो ना हो। और दूसरी चीज ये है कि टखना जो है वो कवर होना चाहिए। टखना जो जुराब है वो टखने को उसने कवर किया हो, और वो इतनी हो कि उसमें से पाँव जो है वो नजर ना आए। मुगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और अपने मोज़ों, जुराबों और जूतों पर मसा किया। और इमाम तिरमिजी ने भी इसे हसन करार दिया, और इमाम इब्ने हब्बान ने इसे सही कहा है। गुस्ल के आदाब। गुस्ल जो है फर्ज जो है वो पीरियड्स के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद, निफास का खून जब खत्म हो जाता है, और हालत जनाबत के बाद, एहतलाम के बाद, और इस्लाम कबूल करने पर, और फिर मौत के वाक़े होने पर। और मुस्तहिब जो गुस्ल आते हैं उसमें जुमा की नमाज के लिए आता है, एहराम बांधने से पहले, मक्का मुकरमा में दाखिल होने से पहले, अरफा के दिन मैदान अरफात में वकूफ से पहले, मैयत को गुस्ल देने के बाद। फराइज गुस्ल जो है उसमें क्या है कि नियत करना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, इस बात का इत्मीनान करना कि पानी जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाए, खास तौर पर जिस्म के गड़े वाले हिस्से जैसे नाफ वगैरह। बाज दफा जिस्म अगर भारी है तो जिस्म के जहां पर बल होते हैं उसको भी वहां से उठाकर तो पानी वहां पर जरूर बहाना जरूरी है। और इसमें हम देखते हैं कि मुस्तहबात में क्या आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना, हाथों को पानी के बर्तन में डालने से पहले धोना, क्योंकि उस टाइम नलका नहीं होता था, शावर्स नहीं होते थे, तो पानी से ही, बर्तन से ही पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो वहां से उसको धो लेना। और फिर शर्मगाह से नापाकी को धोना, साफ करना जिस्म। और फिर उसके बाद अपने हाथों को साफ करना, जिस्म धोने से पहले वुजू करना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और बाहर निकलना, कान के अंदरूनी हिस्सा धोना, यानी पूरा एक प्रॉपर वजू करना। नापाक जगह पर गुस्ल करना, जहां गंदगी के छींटे जो है कपड़ों पर पड़ सकते हो। वहां पर क्या है कि अगर किसी ऐसी जगह पर गुस्ल किया जा रहा है जहां पर कोई पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और वही गंदा पानी जो है उसकी छींटे पड़ सकती हैं, तो पानी का हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। उससे हमें बचना चाहिए, ऐसी जगह से भी बचना चाहिए। दूसरों से पर्दा करना चाहिए, नहाते वक्त पर्दा होना चाहिए। और खड़े होकर गुसल, खड़े पानी में जो है वो गुसल करना, यानी ऐसा पानी जो कि बह नहीं रहा, जो कि खड़ा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, उसमें गुसल करना। फिर ये आता है कि गुस्ल जनाबत, यानी कि हालत जुम्बी, जनाबत के बाद कैसे गुसल किया जाए। नियत करना, हाथ धोना, और फिर उसके बाद शर्मगाह धोना, फिर वुजू करना, और वुजू करने से पहले जहरी बात है दोबारा हाथ धोए जाएंगे। सर पर इतना पानी डालना कि बालों की जड़ें भी तर हो जाएं। 3 लप पानी सर पर बहाना, लप से मुराद है कि जो पानी हाथ में, जो चुल्लू में जिसे हम कहते हैं ना, वो पानी उतना आ जाए। पूरे जिस्म पर पानी डालना, पहले दाएं जानिब से शुरू करना, फिर बाएं जानिब पर, आखिर में पाँव धोना। ठीक है। गुस्ला जनाबत में ये है कि पानी जो है वो इतना होना चाहिए कि जो बालों की जड़ें जो हैं वो गीली हो जाएं। उसमें बाज दफा जिन खवातीन के बाल लंबे होते हैं, और अमूमन अगर शादी नई नई हुई है, तो बाज दफा उनको बार बार नहाने की जरूरत पेश आती है। उस सूरत में क्या है कि खवातीन जो है नीचे से अगर उनके बाल जो लंबे हैं उसको किसी बांध लें, या किसी लिफाफे में उसको टाइट करके बांध लें, और ऊपर से जितना भी जो सर के जितने भी बाल हैं उसको, उनकी जड़ों को अच्छी तरह जो है वो गीला कर दें, तो वो गुस्ल जो है उनका मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि बार बार बालों को धोना जो है वो फिर एक तकलीफ और अजियत का बायस हो जाता है। तो हालत जनाबत के गुस्ल में ये एक सहूलत है। जनाबत के बाद गुस्ल फर्ज है, और हैज खत्म होने पर भी गुस्ल फर्ज है, और निफास का खून जब खत्म हो जाए, जो बच्चे की पैदाइश के बाद आता है, उसके बाद भी गुस्ल फर्ज है। और इसमें क्या है कि सूरह बकरा में हमारे पास आता है कि और वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये हालत गंदगी है, या बीमारी की भी इसमें आता है कि बीमारी है, बस हैज की हालत में औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। जनाबत, एहतलाम या जिमा के बाद, तो मनी यानी मनी के अखराज के बाद, या मर्द और औरत के इज़दवाजी ताल्लुक के बाद, जब मर्द औरत के साथ इख्तलात करे और दखूल हो तो गुस्ल फर्ज हो जाता है।
शहावत के साथ अंजाल के बाद, हदीस की बुनियाद पर है कि जब तुम अंजाल कर लो तो गुस्ल करो। अंजाल यानी कि जो है वो डिस्चार्ज अगर हो जाए तो गुस्ल जो है वो हो जाता है, फर्ज हो जाता है, चाहे दखूल हुआ हो या ना हुआ हो। डिस्चार्ज अगर हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। फिर मैयत को गुस्ल देना, हदीस की बुनियाद पर इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ ताक मर्तबा धो। ठीक है, मैयत को गुस्ल देने का एक पूरा तरीका है, तो उसमें बेरी के पत्तों को इस्तेमाल करना पसंदीदा है। फिर यह है कि मुस्तहबात में दोनों ईदों के दिन गुस्ल करना, यौम अरफा के दिन गुस्ल करना, किसी मुर्दा मुसलमान को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना, हज या उम्रा के लिए एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना, मक्का मुकरमा में दाखिल होते वक्त गुस्ल करना, इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना। और गैर मुस्तहबात जो हैं वो क्या है कि सिर्फ नमाज के लिए गुस्ल करना, सिर्फ तवाफ के लिए गुस्ल करना, सिर्फ मुसफ यानी कुरान मजीद को छूने के लिए गुस्ल करना, सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए गुस्ल करना, सिर्फ मस्जिद में बैठने के लिए गुस्ल करना। गुस्ल जनाबत का तरीका जो है, इसमें क्या, हम एक दफा फिर इसको देख लेते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबत से गुस्ल करते हुए ढांप रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने हाथ धोए, फिर अब दाएं हाथ से पानी डालकर बाएं हाथ पर डाला और शर्मगाह और इसके आसपास के हिस्से को धोया। फिर जमीन पर हाथ मारा, क्योंकि मिट्टी थी, कच्ची थी, और वो जमीन पर हाथ मारने का मतलब ये था कि मिट्टी हाथ को लग जाए पाक करने के लिए। तो या यानी जमीन पर या दीवार से हाथ साफ किया, फिर नमाज के लिए जैसा वुजू करते हैं वैसा वुजू किया, फिर अपने जिस्म पर पानी बहाया, एक मर्तबा दाएं जानिब, एक मर्तबा बाएं जानिब, और एक मर्तबा दरमियान में सर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा हटे और अपने पाँव दे, क्योंकि वो कच्ची जगह थी, वहां पर पानी जो था इकट्ठा हो जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड पे वहां से थोड़ा हट के अपने पाँव पर पानी डाला। और गुस्ले हैज का जो तरीका है, उसमें पानी और बेरी के पत्ते लिए जा सकते हैं। बेरी के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी वो सफाई करते हैं। और पूरे जिस्म को अच्छी तरह धोए, खूब अच्छी तरह पाकी हासिल करें, और पानी सर पर डाले, खूब अच्छी तरह उंगलियों से बालों की जड़ों तक पहुंचाए, और फिर सर और जिस्म पर पानी बहाए। आखिर में एक कपड़ा या रुई लेकर जिसमें खुशबू हो, मसलन कस्तूरी, और जहां से खून आया था वहां सफाई करे। जब एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज के बारे में पूछा था, और वो इस चीज को पूछ रही थी कि वो खुशबू वाली रुई कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी शर्मगाह पर लगाकर खुद समझ लो, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद एक्सप्लेन करते हुए हया आगे और आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ने फिर उनको, उस औरत को फरमाया कि यानी अपने, मैंने उसे इशारे से समझाया कि खून के मुकाम पर अच्छी तरह लगाकर सफाई करे। यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है कि हमारे यहाँ अब उस तरह की खुशबुएं इस्तेमाल नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खुशबू थी वो ड्राई इस्तेमाल होती थी, तो उस खुशबू को लगाया जा सकता था। हमारे यहाँ ऐसी कोई खुशबू अवेलेबल नहीं है, और ये गलती मत कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पर लगा लें, कोई परफ्यूम लगा लें, या कोई डिओड्रेंट लगा लें, या आप पाउडर भी लगा लें, तो ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसका नुकसान होगा। आप आजकल फेमिनिन वॉश आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अर्के गुलाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परफ्यूम या ऐसी कोई चीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। और साबन भी लगाना जो है वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि साबन के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते। तो फेमिनिन वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो होते हैं ये अर्के गुलाब जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है गुस्ले हैज में और गुस्ले जनाबत में, के गुस्ले हैज में क्योंकि खून की एक स्मेल होती है, तो उसके बाद जो है वहां पर अगर इसको अर्के गुलाब लगा ले जाए या फेमिनिन वॉश से उसको साफ कर ले जाए, तो उसकी जो एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तयम्मुम के अहकाम। तयम्मुम के अहकाम में सूरत निसा में आयत आती है कि अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजित से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशिरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों पर इससे मसा कर लो। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। तयम्मुम का तरीका क्या है, दोनों हाथों को एक मर्तबा जमीन पर मट्टी पर मारा या फेरा जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के, फेरा जाए, और फिर चेहरे पर मसा किया जाए, फिर बाएं हथेली से दाएं हथेली पर,
और ऊपर की जानिब मसा किया जाए, फिर दाएं हथेली से बाएं जानिब ऊपर की जानिब मसा किया जाए। ठीक है। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप एक किसी प्याली में या किसी डब्बी में आप ड्राई मट्टी, साफ मट्टी जो है उसको, खुश्क साफ मट्टी जो उसको अपने पास रख सकते हैं। या बाज दफा घर में कोई ऐसा मरीज होता है जो वजू नहीं कर सकता, तो अब आपने, और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको फिर चाहिए कि उसके पास एक मट्टी जो है वो जरूर रखें। किसी भी उसमें डब्बी में रख दें, पाक मट्टी ड्राई। और जब नमाज का टाइम हो तो आप उनको थोड़ी सी उसमें से मिट्टी लेकर उनके डाल के हाथों पर और उसको तयम्मुम करवा दें। तो ये चीजें जो हैं ये क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे पास दफा ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो इन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी सूरत हाल में किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। फिर हैज यानी माहवारी, हैज ऐसे कुदरती खून की हालत है जो बालिग औरतों को आता है, और ये हर महीने जो है ये आता है। और उसमें अल्लाह ताला ने जैसे कि कुरान में भी ये फरमाया है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। और सही बुखारी में भी आता है कि जब हैज का वक्त आ जाए तो नमाज छोड़ दो, तो नमाज जो है उसको छोड़ दिया जाता है, और इस नमाज की जो हैज के दिनों में छूटती है उसकी कोई कज़ा भी नहीं है। तो तीन तरह के खून जो हैं वो औरत की से निकलते हैं। एक ये है कि एक हैज है, दूसरा जो किसी बीमारी की वजह से आने वाला खून, और तीसरा जो है विलादत के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है जिसको हम नफास कहते हैं। तो हैज की हालत में औरत पर जो नमाज होती है वो माफ होती है, अलबत्ता रोजा जो है, जो फर्ज रोजा जो होता है उसको छोड़ने की इजाजत है, मगर बाद में उसकी कज़ा करना जरूरी है। कुरान मजीद को बगैर किसी हाइल के कोई चीज डायरेक्ट छूना जायज नहीं है, किसी चीज के साथ उसको पकड़ा जा सकता है। हैज खत्म होने के बाद गुस्ल जो है वो फर्ज है। और इसका जो दौरानिया है वो भी हर औरत का फर्क हो सकता है, और अमूमी तौर के ऊपर ये महीने में एक दफा जो है औरत को आता है। और इसका दौरानिया एक दिन एक रात कम अज कम यानी 24 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक होता है। और ये भी मुद्दत जो है ये भी इसमें कोई इसमें भी इख्तलाफ है, इसमें कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। और आमतौर पर महीने में एक दफा ही औरत को ये आता है। और हर औरत का एक मखसूस हैबिट होती है इसकी, कुछ का 6 दिन है, कुछ का 7 दिन, कुछ का इससे कम ज्यादा हो सकता है। आदत के मुताबिक हैज का खून आकर खत्म हो जाए तो गुस्ल जो होता है वो वाजिब हो जाता है। आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हैज़ में मुब्तला होती थी, यानी कि उनका मतलब ये था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज शुरू हुई है, ये उस वक्त भी थी। फिर पाक होने के बाद अब हमें रोज़ों का कज़ा का हुक्म देते थे और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। तो वो नमाजें जो होती हैं वो माफ़ हैं। तो यहाँ पे एक छोटे से टेबल में आप देख सकते हैं कि हैज के जो अहकाम उसमें जो ममनुआत हैं, यानी कि उसमें हम जो जो चीजें मना है वो क्या है कि नमाज पढ़ना मना है, रोजा रखना मना है, कुरान मजीद को बराह रास्त छूना मना है, मस्जिद में दाखिल होना या एतकाफ करना मना है, बैतुल्लाह का तवाफ करना मना है, शोहर के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना मना है। कुरान मजीद की ज़बानी तिलावत की जा सकती है, मस्जिद से गुजरा जा सकता है बशर्तिये कि नापाकी ना फैलाए, दीनी मजालिस में बैठा जा सकता है, और शोहर के साथ बुसो कनार किया जा सकता है। फिर नफास का हुक्म जो है वो भी हैज के हुक्म में ही आता है, दोनों का हुक्म एक ही है। नफास की जो मुद्दत है ज्यादा से ज्यादा वो 40 दिन है। अगर खून 40 दिन से पहले बंद हो जाए तो गुस्ल करके नमाज और इबादत शुरू की जा सकती हैं। अगर 40 दिन मुकम्मल हो जाएं और खून बंद ना हो तो फिर क्या है, वो 40 दिन के बाद औरत नमाज और रोजा शुरू करेगी, और वो खून जो का वो फिर बीमारी में शामिल होगा। उम्मे सलेमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नफास वाली औरतें 40 दिन बाद तहारत हासिल करती थीं। फिर जनाबत और एहतलाम, इसमें क्या है कि ममनुआत में क्या आता है कि नमाज पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, बराह रास्त छूना, मस्जिद में दाखिल होना या ठहरना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, नमाज की अदायगी, ये सारे ये चीजें मना है। और सलाम का जवाब देना, खाना पीना, वुजू करके या हाथ धोकर दीनी गुफ्तगू करना, अस्कार और दुआएं पढ़ना जो है वो इसमें की जा सकती हैं।
और फिर क्या है, ये भी आयत जो है ये हम पढ़ चुके हैं, जनाबत या एहतलाम की हालत में। इसमें भी जिसमें मना किया गया कि नमाज के करीब ना जो, हमें जान चुके हैं जब तक कि गुस्ल ना कर लो। इसमें हमारे पास हदीसी आती है, आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते और खाने का या सोने का इरादा करते तो वुजू फरमा लेते। और फिर मनी का और ये जो अहकामात हैं, ये हमने इनको देख लिया है। लेकिन हम इसको कल थोड़ा सा मजीद डिटेल से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें रिपीट होंगी तो ये हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह इस्तिहाज़ा जो है, इस्तिहाज़ा जो है ये वो खून है जो हैज़ो निफास के अलावा किसी बीमारी की वजह से आता है, और ये खून नापाकी का हुक्म नहीं रखता, बल्कि ये बीमारी का खून होता है। और अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, क्योंकि इस्तिहाजा बीमारी का खून है, इसलिए औरत पर पाक औरत की तरह आम शरई अहकाम लागू होते हैं। इसकी मजीद डिटेल जो है वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कल। आज इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, फातिमा बिनते अबी जैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे इस्तिहाजा होता है और मैं पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खून रग का खून है, तुम इन दिनों में नमाज छोड़ दो जिन दिनों में हैज आया करता है, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ो। तो इस्तिहाजा जो है ये बीमारी है, ये नजासत नहीं है। इस्तिहाजा वाली औरत आम औरतों की तरह इबादत कर सकती है। हर नमाज के बाद वजू करना अफसल है। इसमें जायज अमूर जो है इस्तिहाजा में, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान को छूना वजू के साथ, मस्जिद में जाना, तवाफ काबा करना, शौहर से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना, ये सब जायज अमूर हैं। मुश्तबा खून, अगर खून हैज की आदत के दिनों में आए तो हैज शुमार होगा। अगर खून हैज के दिनों के अलावा आए या औरत को शक हो कि ये हैज है या इस्तिहाजा, तो इस सूरत में औरत अपनी साबका आदत यानी हैज के दिनों का एतबार करेगी। फिर इसके अलावा क्या है कि सूरत नहल के मुताबिक इल्म वालों से पूछ लो अगर नहीं जानते। मतलब ये कि अगर औरत को खून के बारे में शक है तो उलमाए दीन और डॉक्टर से रहनुमाई ले सकती है। बाज दफा किसी बीमारी की वजह से आना शुरू हो जाता है, या बाज दफा जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो उस वक्त भी थोड़ी abnormality हो जाती है, तो उस सूरत में डॉक्टर से पूछा जा सकता है। इसी तरह ही फातिमा बिनते अबी हबैश का इस्तिखाजा था, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज का खून हो जो स्याह रंग का होता है और पहचाना जाता है तो नमाज छोड़ दो, जब दूसरा खून हो तो यानी इस्तिहाजा हो तो वजू करो और नमाज पढ़ो, क्योंकि हैज का खून जो होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है और उसमें थोड़ा उसमें स्मेल भी होती है। तो मुश्तबा खून बाज दफा ऐसा हो जाता है कि उसको पहचाना नहीं जा पा रहा होता है कि क्या ये इस्तिहाजा है या हैज का खून है। उसका रंग भी ऐसा होता है और अगर उसमें स्मेल भी कोई खास नहीं तो पता नहीं चल रहा होता। तो ऐसी सूरत में क्या है कि आदत के दिनों में जो खून आए तो वो हैज है, आदत के अलावा है तो इस्तिहाजा है। शक की हालत में साबका आदत को ही बुनियाद बनाया जाएगा। लिकोरिया, लिकोरिया की जो रूलिंग है इसको हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसमें हमने डिटेल से बात करनी है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो टेबल है उसमें हम देख लेते हैं कि हैज, निफास, जनाबत और इस्तिहाजा और लिकोरिया, इन सब के अंदर जो है जो अहकामात हैं उसमें हम देख सकते हैं इस टेबल के जरिए आपके सामने है कि कौन सा अमल जो है वो किया जा सकता है। इसकी मजीद मजीद डिटेल जो है वो कल के क्लास में, कल अपनी ज़रूर आप इसको लीजिएगा, क्योंकि उसमें ख़वातीन से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो अहकामात हैं वो मौजूद हैं। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसमें हमने बुनियादी जो तहारत के जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया। कल हम इंशाल्लाह ताला ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड जो तहारत के अहकाम हैं, जिसमें ख़वातीन से ही सारे मसाइल जो ख़वातीन के लिए खसूसी उनके लिए वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और अपने साथ और लोगों को भी ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें अक्सर ख़वातीन के सवाल भी होते हैं और उनके मामलात भी होते हैं। तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाब भी जो हैं कल की वर्कशॉप में आपको मिलेंगे। जनरली जो ख़वातीन के जो होते हैं तो उसमें हम उन सारे कोशिश हमारी ये है कि हम उन सारे सवालों को जो है कवर करें। तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला कल
جو ہے کل کے ورک شاپ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔